पुराण के अनुसार भगवान गणेश के 8 अवतार हैं। उन 8 में से प्रथम अवतार वक्रतुंड का है। According to Mudgal Puran, there are 8 incarnations of Lord Ganesha, and the first one is Vakratunda. Now, what is the meaning of Vakratunda? Vakratunda का मतलब क्या है? The one with the big tummy, जिसका सबसे बड़ा पेट है। वक्र माने बड़ा, तुंड माने पेट। Once upon a time, King of Heaven was indulged into Pramada that gave birth to a demon named Matsarasur. And then the demon went to Shukracharya, who gave him Panchakshari mantra, the highest mantra of Lord Shiva. He meditated on that mantra, and due to his penance, Lord Shiva gave him boon that you shall not be afraid of anything. With this boon, the Asura started the war against the 3 kingdoms, the earth, the heavens, and the hell. And he won. After that, all the gods and demigods, they got completely frustrated and helpless. And with that, they sat in the desolation where Dattatreya came into help. He gave them a Bij mantra, a mantra to meditate. All the gods and demigods meditated on that mantra. Due to their penance, now Lord Ganesha gave them a boon that he will soon free them from all these miseries. After giving them the boon, Lord Ganesha goes and fight with the demon. So first he kills his 2 sons, Vishaypriya and Sundarpriya. After that, the Asura, the demon, comes himself to fight with Lord Ganesha. The fight continues for more than 5 days. And then the demon realizes that he cannot win the war, and he goes and surrenders himself. To which Lord Ganesha, out of generosity, takes him into his refuge and gives him devotion. एक समय की बात है, देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठे हुए थे और प्रमादवश उनके द्वारा मत्सरासुर का जन्म हुआ। मत्सरासुर जन्म लेने के बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य के पास गया। दैत्यगुरु शुक्राचार्य ने उसे शिव की तपस्या करने का आदेश दिया। शिव को प्रसन्न कर मत्सरासुर ने अभय का वरदान प्राप्त किया। उस वरदान के नशे में उसने 3 लोकों पर हमला कर दिया, सभी को प्रताड़ित किया और सभी को निष्कासित जा किया। उससे प्रताड़ित सभी देवी देवता बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि कैसे इस दैत्य का अंत किया जाए। तब उसी समय वहां से दत्तात्रेय भगवान का निकलना हुआ। दत्तात्रेय ने उन्हें गणपति का बीज मंत्र प्रदान किया और कहा कि तुम उनकी उपासना करो। देवी देवताओं की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान गणेश प्रकट हुए और उनको दैत्य के अत्याचारों से मुक्त करने का आश्वासन दिया। अपने गणों को लेकर भगवान गणेश ने दैत्य पर हमला किया। सबसे पहले उसके 2 पुत्रों का नाश किया। मत्सरासुर के 2 पुत्रों का नाम था विषयप्रिय और सुंदरप्रिय। दोनों पुत्रों का वध हुआ जान मत्सरासुर को और आक्रोश आया और वो जाकर भगवान से खुद लड़ने लगा। 5 दिन से ज्यादा के युद्ध के बाद उसको ये समझ आया कि वो भगवान से जीत नहीं सकता और उनकी शरण में गया। भगवान ने उसको शरण में लेकर
अपनी भक्ति प्रदान करी। तो यह है कथा पुराणों से। सुनने में तो बहुत अटपटी लगती है और बहुत ही सिंपल भी है। तो इसमें ऐसा क्या ज्ञान हो सकता है? इट इज वेरी सिंपल बट इट हैज अ वेरी स्पेशल मैसेज बिहाइंड। प्रमाद, when we know that whatever we are doing is not correct, still we do that. When we know it is wrong, we still think it is right. And that gives birth to jealousy. In jealousy, though you can accomplish your spiritual practices, but in that you become more and more fearless. And when you are fearless, you don't even think what is right, what is wrong, which direction you are going. You just keep on doing things. That leads to complete distress. Then the hope comes. What is hope here? The Lord Dattatreya. Lord Dattatreya signifies master in your life, the importance of master in your life. When you meditate, Vakratunda appears. Now what is Vakratunda here? Vakratunda means the one with the big tummy, but actually it means one who is generous. So when one meditates, generosity rises in him. When your generosity increases, when you become more and more generous, the two sons of jealousy, that is, the two senses which helps jealousy to increase. What are they? Your eyes, Sundar Priya, and ears, Vishay Priya. In life, because of these two senses, the jealousy arises. See how jealousy arises? When you become jealous, either when you see something which is better than you or inferior than you, or you listen to someone's qualities. Yes? What happens when person becomes generous? You don't see people with the judgment, and you don't hear things with the judgment. And that is when Lord Ganesha, in the form of Vakratund, gives the boon to the Matsarasur of his bhakti, his devotion. Now, what does this signify? When you are in unconditional love, when you are completely devoted, you will not be having jealousy around. The Manipur Chakra is responsible for these two feelings, jealousy and generosity. And where is Manipur Chakra situated in the body? At your navel region. Such a simple story it is, but has so deeper meaning. तो अब हम इस कथा के पीछे के रहस्य को समझते हैं। प्रमाद मतलब जब हम जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी हम उसको सही ठहराते हैं। इससे क्या होता है? इससे ईर्ष्या की उत्पत्ति होती है, मत्सर की उत्पत्ति होती है, मत्सरासुर की उत्पत्ति होती है। ईर्ष्या की उत्पत्ति होने के बावजूद भी हम ध्यान, अध्यात्म के पथ पर चल सकते हैं, परंतु हम इतने उन्मत्त हो जाते हैं, इतने मदहोश हो जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है उसका भान नहीं रहता है। देवी देवताओं का व्यथित होकर तपस्या करना, ये क्या दर्शाता है? देवी देवता कौन है? जो हमारे अंदर के अच्छे गुण हैं,
जो हमको बार बार सही राह पर लाते हैं। जब हमको ये रियलाइज होता है कि हम बहुत थक चुके हैं, तब हम गुरु की शरण में जाते हैं। भगवान दत्तात्रेय का आना यह दर्शाता है कि जीवन में गुरु की कितनी आवश्यकता है। जब गुरु हमको सिखाते हैं, बीज मंत्र देते हैं, यानी कि उन्होंने हमको ध्यान करना सिखाया, उन्होंने हमको सही मार्ग दर्शाया, तब वक्रतुंड प्रकट होते हैं। वक्रतुंड का एक अर्थ है जिसका पेट बड़ा है। वक्रतुंड का मतलब यह भी होता है जो बहुत ही उदार है। भारत में प्रचलित भी है, जिसका पेट बड़ा वो उदार बड़ा। जब उदारता तुम्हारे अंदर पनपती है, तुम जब उदारता को अपने जीवन में लाते हो, तब सबसे पहले ईर्ष्या के दोनों पुत्रों का नाश होता है। क्या? विषय प्रिय सुनना और सुंदर प्रिय देखना। ईर्ष्या जो है वो या तो देखने से या फिर सुनने से ही उत्पन्न होती है। जब हम उदार होते जाते हैं तो हम किसी में भेद नहीं देखते, और 5 दिन के युद्ध के बाद मत्सरासुर जब भगवान को समर्पण करता है, अर्थात उदारता ने ईर्ष्या का दलन किया। जब भी उदारता बढ़ती है, ईर्ष्या अपने आप कम हो जाती है। उसके बाद भगवान गणेश उसे भक्ति का वरदान देते हैं। भक्ति माने क्या? बिना किसी वजह, बिना किसी कारण के बस प्रेम करना, समर्पित हो जाना। जब हम भक्तिमय होते हैं तो हमें कौन कैसा है, दुष्ट है कि सज्जन है, जीव है कि जानवर है, इसका कोई भान नहीं रहता है। हमारे लिए मुख्य तत्व प्रेम रह जाता है। शरीर में मणिपुर चक्र ईर्ष्या और उदारता दोनों भावों को समाहित करके रखता है। मणिपुर चक्र हमारे नाभि के पास स्थित है। इसीलिए वक्रतुंड उदारता के प्रतीक हैं। कितनी ही साधारण कथा है, पर इसके पीछे छिपा जीवन का सत्य। जब भी जीवन में ईर्ष्या बढ़े, समझ लेना तुम्हारे अंदर मत्सरासुर का जन्म हुआ है, और उससे निजात पाने के लिए ध्यान करना। ध्यान से अंदर वक्रतुंड प्रकट होंगे और भक्ति जगेगी। So whenever in life you feel that jealousy has increased, that time just meditate and it will lead into the incarnation of Vakratunda. So let's chant once again this mantra of Vakratunda. एक बार फिर हम इस मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गुरुदेव।